حالت تیری قسمت نہیں دی یا علی تیرے چاہیے ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ انتظار حسین مہدی صاحب. اب میں دعوت خطاب دوں گا ذکر محمد وآل محمد بیان کرنے کے لیے علامہ حسنین عباس آف اسلام آباد آخری مقرر ہیں. تمام مومنین سے التماس ہے کہ ضرور سن کے جائیں. مہمان ہیں، مہمان کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کے لیے تمام مومنین سے التماس ہے کہ ضرور سن کے جائیں. قبلہ صاحب کی آمد کریے. بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہ برائے تاجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف علیہ الصلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آئیے ابتدائی مجلس میں جمعیت شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں. وہ تمام مرحومین جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے اور آج ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. منتظمین صف اعضاء کے ایصال ثواب کے واسطے اس قریے اور اس بستی میں بسنے والے جتنے شیعان حیدر کرار اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ مع سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار باجماعت ہدیہ الصلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام. والصلاة والسلام على الشمس الزہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر. ثم الصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی اللہ محمد ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم. اما بعد قال النبی الاعظم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاة. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. زندگی میں ہر شخص محتاج ہے آل محمد کے حسنات کا
जो बंदा अपने आप को मकरूज समझता हो आले मोहम्मद के एहसानात का, वो कर्ज नहीं फ़र्ज समझते हुए, एहसान नहीं ईमान समझते हुए, आदत नहीं इबादत समझते हुए, कंकर नहीं दुर बनकर, गुनहगार नहीं हुर बनकर एक ऐसी सलवात की तिलावत फरमाए कि शहंशाह दौरा उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सामईन नज़ीर विकार मवालियान हैदर करार मुहिबाने आले अथार, परवरदिगार आलम का लाख एहसान कि उसने एक मरतबा फिर हमें सफ़े अज़ा पे आने की तौफीक अता की। मैं इससे हट के जुमला कहना चाहता हूँ, जो इस हकीर और इस तालिब इल्म का वक्त था वो 3 से 4 बजे का था, और उसी से वास्ते खिताब के लिए हम इस्लामाबाद से आए। लेकिन पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो सड़कों की हालत है और इलाका आप उससे बखूबी आशना है कि जब मोटरवे छोड़ने के बाद जो सड़कों की हालत है, और दूसरी चीज़ चूँकि मैं 3:10 3:15 तक आपके पास पहुंच जाता, रास्ते में रास्ता भूल जाने की वजह से गूगल मैप की जो बला है, ठीक है, उसी को फॉलो करते आ रहे थे, क्योंकि ड्राइवर भी आज हमारा तब्दील था, उसी को फॉलो करते आ रहे थे, उसकी वजह से भटके और बहुत ज़्यादा भटके। इसीलिए मैं 4 बजे आया, तो मुझसे पहले जो सैयद बुजुर्गवार पढ़ रहे थे तो वो उनका वक्त था, इसलिए उन्होंने उस वक्त में पढ़ा। तो मैं, चूँकि आपने इंतज़ार किया, सफ़र 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर का करके आना हो, मैं जो चीज़ ज़रूरी समझता हूँ वो यही समझता हूँ कि अगर पढ़ने वाला ताख़ीर से आए, वजह कोई भी हो, तो दरअसल वो हकदार बनता है कि वो मोमिनीन से माज़रत चाहिए। लिहाजा मैं आपसे माज़रत खा हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा होगा यकीनन। हाँ, इसके अलावा मैं किसी और के वक्त का वो जवाब दे नहीं हूँ, अपने वक्त का जवाब दे हूँ कि मैं ताख़ीर से जिस भी वजह से पहुँचा, वजह भी पहले बता दी। इसमें मोहतरम सैयद मोहतरम हमारे मौलाना साहब की कोई गलती नहीं, इन्होंने तो यकीनन एहतमाम फरमाया था। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि ये भी सिलसिले चलते रहते हैं। अब आप घबराए हुए तो नहीं हैं? अगर घबराए हैं तो यही तमाम कर देते हैं, लेकिन मैं तमाम करूँगा नहीं, आप बेशक घबरा जाए, ठीक है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। क्योंकि सारा साल की आपकी मेहनत होती है, मुंतज़मीन की सारा साल की मेहनत होती है, इसलिए कोशिश करूँगा कि हर्फ़ आखिर के तौर पर कुछ न कुछ मारूज़ात और कुछ न कुछ बेहतरीन चीज़ें अपनी कौम के हवाले करके चंद जुमले मसाइब के पढ़ के आपको सलाम कर जाए। सरनामा कलाम में जो हमने पढ़ा वो हदीस मुबारक है जो बच्चों को भी याद होगी कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। लेकिन अगर इतना ही तर्जमा करना हो तो मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। मैं एक बिल्कुल नई जहत आज आपके सामने पेश करूँगा। ये तय है कि ये हदीस है, लेकिन कोई भी जुमला जब कहा जाता है तो उस जुमले का कोई मौका महल होता है। भाई अभी मजलिस अज़ा में सलवात पढ़ाने के बाद जिस जुमलों से मैंने इब्तदा की कि मैं लेट हो गया, हर मजलिस की इब्तदा तो ऐसे नहीं होती, कोई 1.5-2 सालों बाद मजलिस अज़ा हो जाए तो होती है। लेकिन ये बात लिख दी जाएगी कि जो भी आपका इलाका है, ठीक है, सरगोदा के इलाका या खुशाब का ये जो इलाका है, इस इलाके में हसनैन अब्बास ने मसलन फुला मकाम पे ये जुमला कहा था इब्तदाए मजलिस में। यानी ये होता है वो महल, वो मौका के जब जुमला इरशाद फरमाया जाता है। नबी ने फरमाया हुसैन चराग़े हिदायत है, हुसैन नजात की कश्ती है। लेकिन मकाम कौन सा था जब नबी को ये इरशाद फरमाना पड़ा? या दूसरी चीज होती है कहीं लिखा देखा जाता है, ये खूबसूरत बैनर्स लगे हुए हैं, कहीं फरमाने मासूम लगा हुआ है, कहीं बुजुर्गान उलमाए कराम के फरमीन लगे हुए हैं। आप यहाँ से कोई चीज पढ़ लेते हैं, पढ़ के अपने घर चले जाते हैं और घर जाके बताते हैं मैं आज फुला मजलिस में गया था, वहाँ मौलाना ने जो एहतमाम किया हुआ था उस बैनर के ऊपर मैंने ये हदीस पढ़ी है, उस बैनर के ऊपर मैंने ये हदीस पढ़ी है। अब जो नबी ने फरमाया हुसैन चराग़े हिदायत है, हुसैन नजात की कश्ती है, एक मकाम था जहां नबी ने ये लिखा देखा था। कौन सा मकाम था जहां रसूल ने ये लिखा देखा था? उस मकाम की पहले तो अहमियत पता हो और उसके साथ साथ रसूल के कौल की सदाकत का इल्म हो। रसूल के कौल की सदाकत, आओ कुरान की तरफ बढ़ते हैं। सूरह अन-नज्म में पुकारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वन नज्म, सितारे की कसम, ये वाव वाव कसमी है। अच्छा, हमें कसमें खाने से रोकता है? किबला मौजूद है, फिकी मसला बयान करता जाऊं। कसम अगर सच्ची खाई जाए तो हराम है, सॉरी, सच्ची खाई जाए तो मकरूह है,
झूठी खाई जाए तो हराम है, ठीक है, ये इज्तिमा हुआ। सच्ची खाई जाए तो हराम नहीं है लेकिन मकरूह है। झूठी खाई जाए तो हराम है, सच्ची खाई तो हराम नहीं है। ऐने मुमकिन है कोई ये कहे जब हराम नहीं है, ये जुमला पहुंचाना चाहता था, हराम नहीं है लेकिन मकरूह है। मकरूह समझते हैं ना, अकाम खमसा में से 5 अकामात में से वाजिब, हराम, मुस्ताहब, मुबाह और मकरूह। मकरूह कहते हैं जो नापसंदीदा होता है, सवाब कम हो जाता है। अगर कोई बंदा सच्ची कसम खाए, हराम नहीं है लेकिन मकरूह है। जब मकरूह है तो नापसंदीदा है, जब नापसंदीदा है तो सवाब कम हो जाएगा। तो कारोबार करने वालों, खेती बाड़ी करने वालों, अल्लाह आपको आबाद रखे, लेकिन कभी भी कारोबार में कसमें न खाना, अगरचे सच्ची ही क्यों ना हो, इसलिए कि सच्ची खाने से तेरा माल तो बिक जाएगा, माल से बरकत जाती रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी। अगर सच्ची खाएंगे तो मकरूह है, माल तो बिक जाएगा, बरकत चली जाएगी। बरकत क्या होती है? बरकत यही तो होती है, बरकत का चले जाना। बरकत यानी शायद थोड़ी होती है, इस्तेफादा उससे ज्यादा होता है, फायदा ज्यादा हो जाता है। लेकिन बरकत उठ जाए, शायद जितनी भी हो फायदा नहीं होता। अब हमें कसमें खाने से रोकता है, खुद कसमें खाता फिर रहा है। कभी कहता है वल फजर, कभी कहता है वत्तीन, कभी कहता है वल जैतून, कभी कहता है कि वन नज्म, सितारे की कसम। उसने कसमें इसलिए खाई कि कसम खाने से बंदों को बात का यकीन आ जाता है। लेकिन ये जुमला आपने नहीं करना, ये सिर्फ वो कर रहा है। उसने कसमें खाई ताकि बात में ताकीद पैदा हो जाए। उसने कहा वन नज्म, सितारे की कसम, जब वो गिरे। कब? सितारा जब गिरे। गिरा किसकी चौखट पे था? बिरादरान की किताबें भी पुकार रही हैं, हमारी किताबें भी पुकार रही हैं। एक चौखट थी अली इब्ने अबी तालिब की, जहां सितारा गिरा। रसूल ने नमाज ईशा के बाद ऐलान किया था कि आज सुबह फजर के वक्त एक सितारा गिरेगा, जिसकी चौखट पे गिरेगा वो मेरा वसी होगा। अब तवज्जो कीजिएगा, कितनी हसरत होगी उन्हें सारी रात में कि सितारा मेरी चौखट पे गिरे, सितारा मेरी चौखट पे गिरे। यही तो जुमला समझाना चाहते हैं शिया सुन्नी साहिबान, जानते हैं मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई हूँ। यही तो जुमला समझाना चाहते हैं। कुछ रातें ऐसी थी जो बड़ों बड़ों की बड़ी हसरतों में गुजरी। एक रात वो थी जब नबी ने कहा कल सितारा गुजरेगा, भाई सारी रात सितारे के गुजरने की हसरत रही। एक रात वो थी जब नबी ने कहा सुबह सच्चे जाएंगे मुबाहला में, सारी रात वहां सच्चे बनने की हसरत थी। और एक रात वो थी जब नबी ने कहा था कल अलम मर्द को दूंगा, तो सारी रात खैबर में मर्द बनने की हसरत थी। कल अलम मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत रखते होंगे। यानी सिर्फ इसकी मोहब्बत नहीं है, वो भी मोहब्बत करते हो। यानी मोहब्बत का तकाजा ये है, मैं सिर्फ ये ना कहूँ मैं अली का मुहिब हूँ, अली भी महशर में कहें ये मेरा शिया है। मैं ये ना कहूँ मैं आशिक रसूल हूँ, रसूल भी महशर में ये कहें कि ये मेरा चाहने वाला है। और कहा कल अलम मर्द को दूंगा, ये तशरी तलब है। दाढ़ियाँ तो सबकी थी, ज़ाहिरी तौर पे मर्द सारे थे शिया सुन्नी साहिबान, लेकिन फिर भी कहा कल अलम मर्द को दूंगा। यानी बताया मर्द हकीकी वो होता है जो गुनाहों से बचता है। अगर ये मिजाज के मुताबिक ना हो तो हकीकत यही है। अब मर्द हकीकी वो होता है जो गुनाहों से बचता है। मर्द वो नहीं होता कि जो गुनाह करता हुआ नजर आए, मर्द वो होता है जो गुनाहों से बचता है। मर्द वो नहीं होता है जो नजिस चीज शराब को पी के कहे कि मैंने मर्दानगी की है। मर्द वो होता है जो पी सकता हो और इसके बावजूद कहे मैं लानत भेजता हूँ, इसलिए कि अली इस पे लानत भेजते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या
सलामत रहिए। मैं फिर एक जुमला मोतरज़ा ला रहा हूँ, ज़्यादा जुमले मोतरज़ा मैं मजलिस में लाने का आदी नहीं हूँ। किबला ने जो कहा था ना, किबला का इरादा ये था ड्राइंग रूम में बैठे हुए 5:30 मजलिस अज़ा तमाम हो जाए, ठीक है। लेकिन अब 5:30 होने में 2 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं इनकी नहीं मान रहा। मुझे मालूम है गांव देहात का सफ़र है, कोई पैदल आए हुए हैं, कोई मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं, रास्ते में ख़तरा भी होता है, लेकिन मैं ये जुमला बनावट नहीं कह रहा। खुदा न खास्ता अगर रास्ते में किसी का माल लूटा जाए मजलिस के बाद, मैं जमानत देता हूँ किबला से राब्ता करना, मैं उसका इजाला करता नजर आता, मैं उसका इजाला करूंगा। लेकिन इंशाल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप तवज्जुहात याद रखिए, सारा साल की मेहनत होती है ना। मैं नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं शिया सुन्नी इन जवानों को कुछ दे के जाऊँ। जितने बैठ गए हैं 1.25 लाख से ज्यादा अहमियत के हामिल है। मर्द वो होता है कि जो गुनाह कर सकता हो और ना करे। मर्द वो नहीं होता जो बेचारी ज़ौजा को मार मार के हाल बुरा कर दे। मर्द वो होता है ज़ौजा पे गुस्सा आए लेकिन इसके बावजूद गुस्सा पी ले कि मेरे अली की सुन्नत है ज़ौजा से प्यार से पेश आना। मर्द वो नहीं होता जो घर में आए तो औलाद छुपती फिरे, अब्बा जी आगे नहीं छोड़ेगा। मर्द वो होता है जो घर में दाखिल हो, औलाद बढ़ के उसके हाथ चूमे, हमारा शफीक बाप आ गया। मर्द वो होता है जो अपने नौकर पे जुल्म न करे। मर्द वो होता है जो किसी की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता हो लेकिन ना पहुंचाए। ये बात, मर्द वो नहीं होता कि जो फसाद करवाता फिरे बनामे शिया सुन्नी। मर्द वो होता है जो फसाद करवा सकता हो लेकिन फिर भी कहे उम्मत में फसाद न डालना। शिया भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, सुन्नी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या औलिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ठीक है, तवज्जो रखिए आप या रसूल अल्लाह, या जो गुनाह कर सकता और गुनाह न करे। फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। तो बड़ी हसरतों में गुजरी जिंदगियां, बात आ गई थी तो करके गुजरने का आदि, बड़ी हसरतों में गुजरी जिंदगियां। नबी ने फरमाया कल सितारा गिरेगा। किसकी चौखट पे गिरा? अली इब्ने अबी तालिब की चौखट पे। और ये क्यों कहा कुरान ने, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा हबीब बहका नहीं है, गुमराह नहीं हुआ। क्यों भाई? तलाश करो, उलमा आलम इस्लाम से पूछो वजह क्या है। इसलिए कि वो नबी को कहते थे ये अली की मोहब्बत में बहक गया है, अली की मोहब्बत में दीवाना हो गया है। तो हमारे नारे हैदरी लगाने पे उलझ न जाया करो। पता चला जो भी अली के फजाइल पढ़े जमाना उसे दीवाना कहता हुआ नजर आता है। ये अपने नफ्स की ख्वाहिश है, या अपने नफ्स की ख्वाहिश से नहीं बोलता। वही कहता है जो वही इलाही होती है, यानी वही आती है तो मेरा नबी बोलता है। अच्छा, जो रसूल ने कहा वो वही है और जो रसूल ने कहा वो सारा कुरान नहीं है। इसलिए कि कुरान है 30 पारे, 114 सूरतें। और मैं मिंबर के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए जुमला कह रहा हूँ, कुरान 30 पारे, 114 सूरतें। बकरी वाली रिवायत मेरी किताबों में है ही नहीं है। मैं मिंबर से, मेरी किताबों में ये रिवायत नहीं है। मेरा तो कुरान 114 सूरतों और 30 पारों पर मुश्तमिल है। वही जो बिरादरान का है, वही जो हर आलम इस्लाम में पाए जाने वाले मुसलमान का है। अब कुरान वही इलाही है, लेकिन जो रसूल ने कहा कुरान नहीं बना। कुरान तो फकत 30 पारे, 114 सूरतें, लेकिन जो रसूल ने कहा वो वही जरूर बनी। यानी पता चला जो रसूल ने कहा वो कुछ वही बन गई,
کچھ حدیث بن گئی. البتہ جو قرآن نہیں بنی وہ قرآن سے درجے میں کم بھی نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ وحی الہی بنی. اچھا فرماتے ہم اور آپ بھی ہیں, فرماتے قبلہ کعبہ بھی ہیں, فرماتے مفتی صاحب بھی ہیں, فرماتے مولانا صاحب بھی ہیں, فرماتے وہ جناب بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم جیسا تھا, لیکن تم بولو تو وہی بنتی ہے. جرت نہیں ہے وہی کی زیر زبر نہیں بنتی, رسول بولے تو وہی بنتی ہے. اب بھی شرم نہیں آتی یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہم جیسا تھا.